Namaste all, this is JV Nanjali Parekh from Faculty of Education and Methodology, Department of Fashion and Design. Today I'll be talking about the career perspective that are available in the fashion designing and what is fashion designing all about. So if I say that what is fashion designing? So it is one of the highly creative and in-demand career that is currently in the world. It is especially to those who love to study fashion trends, sketch designs, and develop something new and creative in the world of Vogue. Wondering how to start a career in fashion designing? Well, you will need to pursue a basic design diploma or a degree to begin in the career in this field, which can help you learn the intricacies of designing clothes, apparel, as well as studying the latest trend that are currently going in the worldwide. In this video lecture, we will discuss about what is fashion designing, what does a designer do, what are the career opportunities, uh, what are the various forms where, what are the various platforms where one could work, and what are the various positions where one could choose their career as. So basically, first thing that we need to keep in our mind is fashion designing is not about stitching only. This is the very normal phenomena that everyone has regarding the fashion designing. If you, especially in the conservative areas or conservative demographics, if we look onto, they basically have a thinking that if you are pursuing for fashion designing, you must be a tailor or you would just open a fashion boutique. But it's not the only thing that the designers do. There are many more perspectives, there are many more platforms that one could go on to. Now we will discuss about what does a fashion designer do. It is crafting of the design process from conception through the to the final look. It involves market research, trends that are available, techniques, and striving for the design inspiration. Whenever we start designing any garment line or anything that we do in the designing part, designing is what? Creating something new that is available in the market. Or, sorry, that is not available in the market, or creating something new that is for a particular person, for a particular mass market, for some group of people. So if you look onto what are the processes that involves in the fashion designer lifestyle, so he does a market research. Why market research? Because every person needs to have some knowledge or information about what he or she is working for. If he or she has no knowledge about the work that they will carry on, then what will he make out of it? So it is very important to know the basics of fashion designing, the basic of market research. In market research, we will see what are the trends that have been going on, what are the fabrics that are available in the market, what are the things that we need to now focus on due to the environmental or social aspects. Like in the current time, we know that there is a lot of textile wastage that has been holding upon since very long, and we need to do something about it. So sustainable fashion is what we are looking for, and the in the current era, at the current time, we are looking for the sustainable fashion and also trying to conserve the old art that has been uh, faded up of with the current things going on. So it involves the market research, trends in fabric, techniques, and striving for design inspiration. One has to look for the inspiration. Inspiration could be anything. It is something that you keep on observing. मतलब आप अपने आसपास में देखेंगे कि क्या चल रहा है. इंस्पिरेशन आपको किसी भी चीज के थ्रू मिल सकती है. It is not focused upon only on books. It is not focused only upon internet or anything. It has a very great variety. It has a very huge market that one has to focus on. So while searching for the inspiration, it could be any damn thing in the world. It could be a color, it could be a person, it could be a feeling, it could be any trend, it could be a art form, it could be any artisan. मतलब कुछ भी दुनिया में जो आपको दिख रहा है,
आज तक आपने ऑब्जर्व किया है, दिखा है, महसूस किया है, या ऐसा कुछ भी, तो वो आपकी इंस्पिरेशन हो सकती है। और इंस्पिरेशन हम क्यों ले रहे हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जो कि यूनिक है। तो ऑलरेडी अगर मार्केट में कुछ चल रहा है तो उससे आप इंस्पायर नहीं हुए, वो उससे आप इन्फ्लुएंस हुए। अगर वही चीज आपने कॉपी कर कर बना दी तो वो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। बट इफ यू वांट टू create something new, if you want to do something new, you have to get inspired from something। तभी आप कुछ अलग बनाकर दे सकते हैं मार्केट में। तभी आप अपनी जो सोच है या फिर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप सामने वाले की तरफ रख सकते हैं। तो उसके बाद में आपका आता है एडिटिंग द डिजाइन इन स्ट्रीम, क्रिएटिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, सेलेक्टिंग एप्ट फैब्रिक और स्निप्स, डेवलपिंग स्केचेस फॉर द कस्टमाइज पैकेज। जब आपने डिजाइन देख ली कि आप क्या कर रहे हो, आपने कंसेप्ट सोच लिया कि आपके दिमाग में क्या है, तो उसके बाद में आप फैब्रिक सिलेक्शन और स्निप्स वगैरह बनाना चालू कर देते हो। इस टाइम पर आप लोग क्या साथ में करेंगे, एक इंस्पिरेशन बोर्ड बनेगा, मूड बोर्ड, कलर बोर्ड। ये तरीके के जो मेन बोर्ड्स हैं ये बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आप कहीं से इंस्पायर हुए हो, आपने कुछ कलर सोचे, क्यों आसपास देखा और आपको लगा कि मुझे मेरे डिजाइन में ये चीज लेकर आनी है, तो आप उसका एक छोटा छोटा फोटोग्राफ्स का कोलाज बनाकर आपने अपने पास में रख लिया, या फिर उसके कुछ टर्म्स लिख लिए जिसको अपन ब्रेनस्टॉर्मिंग या माइंड मैपिंग भी बोलते हैं। तो ऐसी सारी बहुत इंटेंस प्रोसेसेस हमें करनी होती है जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं। तो जब हमने हमारा बोर्ड बना लिया उसके बाद में वील गो ऑन टू द स्केचेस। यू विल क्रिएट वेरियस सिलुएट्स continuously, almost around 40 to 50 sketches, and then you'll select some out of it, जो कि आपकी बेस्ट डिजाइन्स में से होगा। then you'll start coloring it and you'll create a prototype out of it। तो उसको आप री एग्जामिन करेंगे और फिर उसमें कोई स्टोरी थीम इसको पूरा डिपिक्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक फैशन डिजाइनर काम करता है। Now, what are the career opportunities that are there in the fashion designing? One could be a fashion designer. Fashion designer जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि कोई भी एक थीम पे काम करना चालू कर दिया, उसके लिए कोई इंस्पिरेशन ली, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के उसका एक प्रोटोटाइप बनाया और फिर मार्केट में सर्वे किया कि कौन सा उन्हें बेटर लग रहा है, या फिर एक कस्टमर के हिसाब से बनाने के लिए हमने कुछ करा। और ये बेसिकली हम लोग मार्केट के लिए करते हैं, खुद की इंस्पिरेशन से, बट कुछ नया लेकर आना है। तो ये फैशन डिजाइनर का काम होता है। इसके बाद में हम अगर हम दूसरी जॉब देखें तो आपका आता है रिटेल बायर। रिटेल बायर कौन होते हैं? जो कि एक लॉट ऑफ प्रोडक्ट, एक लॉट जो होता है बंडल, उसको वो सेल कर रहे हैं दूसरे अलग अलग लोगों को, अलग अलग मार्केट को। रिटेलर कुछ एक स्टोर वाला भी हो सकता है, एक खुद का उनका बुटीक हो सकता है, या कुछ भी। तो वो रिटेल बायर हो गए जो कि एक जगह से प्रोडक्ट को ले रहे हैं और नॉर्मल कंज्यूमर्स को वो लोग वो प्रोडक्ट को डिलीवर करवा पा रहे हैं। इसके अलावा रिटेल मैनेजर होते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट होता है। फैशन स्टाइलिस्ट का क्या काम होता है कि दैट दे डिजाइन द क्लोथ्स फॉर अ पर्सन, दे try to put all the things together that work accordingly with a balance, with a harmony, with a symmetry, and they try to cope up all the things। जो भी हमारे एक्टर्स होते हैं या मॉडल्स होते हैं उन लोगों के लिए एक जने ने मतलब एक इंसान ने प्रोडक्ट बनाकर दे दिया, बट उसके बाद में उसको किस तरीके से स्टाइल करना, उसके साथ क्या एक्सेसरीज आएंगी, क्या फुटवेयर आएगा, ये सब काम किसका होता है? एक फैशन स्टाइलिस्ट का। वो पहले से या तो उसकी स्केचिंग करके रखेगा, या फिर उसको वो एग्जैक्ट उस टाइम पर पहले दो तीन ऑप्शंस अपने पास रखेगा, और जो उसको बेस्ट सुटेबल होगा वो सामने वाले को वो दे देगा। उसके अलावा ज्वेलरी, फुटवेयर डिजाइनर, पर्सनल शॉपर, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन मॉडल, फैशन फोटोग्राफर, फैशन जर्नलिस्ट, टेक्सटाइल डिजाइनर, और ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं जो कि एक इंसान काम करता है। तो इसके लिए कई सारे हमारे कोर्सेज होते हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कराए जाते हैं। तो जो आपका फैशन मॉडल हो गया, फैशन मॉडल कौन हो गया कि इट इज द वन हु एक्ट्स एंड वॉक ऑन अ रैम्प टू शो द न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द कमर्शियल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। सम फैशन डिजाइनर wear the own clothes to represent themselves, and sometimes they hire the models to promote their work। if you know about Masaba, what does she do कि पहले तो वो एक फैशन डिजाइनर थी कि उसने प्रोडक्ट बनाया और अब उसने एक मॉडल हायर किया और उसको वो पहनाना चालू करा। बट लेटर ऑन व्हाट शी डिड वाज शी वाज हर ओन ब्रांड्स मॉडल।
क्योंकि उनका, जैसे हम लोग का एक थियरी था कि हाँ नहीं, गोरे लोग ही ज्यादातर मॉडल बन सकते हैं, आप बहुत लंबे हो गए, फिट बॉडी हो गई तो ही आप मॉडल बन सकते हो, बट in the current time there are various options that are being put on, and there are various things that are being looked upon. So बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिसके ऊपर ये सब पहनाया जाता है। तो वैसे ही उसने डिसाइड किया कि मैं खुद को क्यों ना प्रमोट करूं, मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई कमी है। तो इसलिए उसने खुद ने पहनना चालू किया, लोगों ने उसे पसंद किया कि उसकी बोल्डनेस को। क्योंकि आप अगर दुनिया में देखें तो 100 में से 10 लोग होंगे कि वो बहुत ज्यादा जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है उनको फुलफिल कर रहे होंगे, बट 90% नहीं होते। तो जो 90% लोग हैं वो अपने आप को रिलेट करना चाहते हैं दूसरे लोगों से या मॉडल से या डिजाइनर से। तो वो कैसे होगा जब आम लोग ही उस ड्रेस को पहनेंगे कि हाँ उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं अगर पहनूंगी तो मेरे पर ये ड्रेस इस तरीके लगेगा, बजाय उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की। क्योंकि अगर मैं वैसी लगती नहीं हूँ और मैंने वो पहन लिया तो उसका क्या फर्क पड़ता है, मतलब एक अलग परसेप्शन बन जाएगा। तो इस तरीके से भी मॉडल्स का डिसाइड होता है। कुछ टॉप फैशन डिजाइनर्स हैं जैसे कि सब्यसाची, गुची, जॉन गैलिनो, रॉय हॉल्स्टन, और फिर आपके और भी कई सारे ऋतु कुमार एंड वेरियस अदर फैशन डिजाइनर्स आर देयर। एंड इट हैज अ वेरी वास्ट करियर इन इंडिया ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में फैशन डिजाइनिंग का स्कोप नहीं है, इनफैक्ट हर एक स्टेट में इंडिया के अब फैशन डिजाइनिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। क्यों है? क्योंकि टेक्सटाइल जो है वो हमारे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर कंट्रीब्यूट कर रहा है एज एन इंडस्ट्री। तो इसका रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी पर्सन दैट लिव्स has the basic need of roti kapda makan, and if the food need is being fulfilled, then the other where they go is a shelter which is also fulfilled, then they go to the clothing which is very basic, जो हर इंसान पहनता ही है, हर इंसान करता ही है। तो इसका मार्केट कितना बड़ा होगा ये हम इसी चीज से अंदाजा इसका लगा सकते हैं। और आज के टाइम पे इंडिया बहुत एक डेवलपिंग कंट्री है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि अगर डेवलपिंग है तो उनके पास इकोनॉमिकली भी वो काफी हाई है। और जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जब आपके पास पैसा होता है, तो यू गो फॉर द लग्जरी ऑल्सो एंड लेजर ऑल्सो। तो इट इज नॉट जस्ट द बेसिक नीड, बट इज ऑल्सो the want that a person has, and it is a basic want that every damn person has। और बहुत कम लोग होंगे जो इतना ज्यादा ना सोचते हो, बट उनको भी इस चीज की नीड जरूर है। तो फैशन डिजाइन का अगर हम लोग देखें तो हर एस्पेक्ट में ये वर्क करता ही करता है, हर जगह पे करता है, हर तरह से करता है। तो अलग अलग जगह पर आप काम कर सकते हो, जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हाउस हो गया या फैशन बुटीक हो गया, या फिर आप यू कैन वर्क एज एन इंडिपेंडेंट एंड यू कुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड। और टेक्सटाइल और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम जयपुर में देखें तो रिको एरिया है, और फिर सिटी साइड में भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, और इसके अलावा बगरू में है, और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है टेक्सटाइल की। उसके अलावा कुछ रिटेल चेन्स होती है। रिटेल चेन्स कौन सा? जैसे यूसीबी है, तो उसका कहीं और पे भी स्टोर है, और इस जगह पर भी है, फॉरेन में भी है, हर जगह है। तो वैसे रिटेल चेन्स हो गए। फैशन ब्रांड शोरूम हो गया। टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री को तो हम जानते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन, स्टाइल, everything is related to here। And also the other thing that you could do is that teach the course in the institute that the way I am doing right now, कि आप ये वाली इंफॉर्मेशन पास कर सके। फैशन डिजाइनिंग के कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन चाहिए होती है फैशन डिजाइनर के लिए, जो कि होती है कि बेसिक 10th और 12th आपका होना चाहिए। उसके बाद में आप बैचलर्स में एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। बैचलर्स कर लिया उसके बाद में यू हैव द ऑप्शन फॉर मास्टर्स, एंड देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द पीएचडी थिंग। तो काफी वास्ट इसमें स्कोप होता है। और फैशन डिजाइनिंग का इट इज नाउ नॉट ओनली अबाउट द बेसिक स्टाइलिंग, पर अब इट इज ऑल्सो अबाउट द साइंस दैट इट हैज। क्योंकि अभी हमारे पास नए तरीके के टेक्सटाइल इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे स्मार्ट टेक्सटाइल्स हो गए या फिर इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स हो गए। वो कैसे बनेंगे
कोई अपने आप तो मार्केट में आएगा नहीं, ह्यूमन ही उसको बना रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, बेसिक नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, टेस्टिंग होती है। तो जैसे आईआईटीज वगैरह में लोग और चीजों की टेस्टिंग करते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, वैसे ही टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी एक चीज है जिसपे कि लोग काम कर रहे हैं, नए नए टेक्सटाइल बना रहे हैं, स्मार्ट टेक्सटाइल बना रहे हैं, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल बना रहे हैं, सब सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स बना रहे हैं। तो और होम डेकोर की इतनी बड़ी रेंज होती है, मतलब इट इज नॉट अबाउट द अपैरल थिंग ओनली, इट इज ऑल्सो अबाउट द होम फर्निशिंग, जिसमें कि आप बात कर रहे हो एक बेड शीट से लेके कर्टेन या कुछ भी, तो वो होम फर्निशिंग रेंज में आता है। इसके अलावा आपकी कार एक्सेसरीज हो गई या साउंड प्रूफिंग हो गई, उसके लिए क्या मटेरियल यूज हो रहा है। तो हर चीज में जो है आपका टेक्सटाइल या फैब्रिक कहीं ना कहीं इंडल्ज हो ही रहा है। तो उसमें इंजीनियरिंग भी है, बेसिक स्टाइलिंग भी है, डिजाइनिंग भी है। तो ये सारे एस्पेक्ट है। और जो फैशन डिजाइनिंग है वो लिमिटेड नहीं है, वो बहुत बहुत वास्ट है। हमें क्योंकि उसका पूरा नॉलेज नहीं होता तो हमें सारी चीजें पता नहीं होती, बट it is about studying, and if you'll study this course you'll have more knowledge about it. uh, if you ask me that is fashion designing a good career, then I would say that it is one of the most in demand careers in the world. Being a highly creative field, it can give you the opportunity to blend cultures and transfers or traverse the traditional attire to the contemporary ones, and even play with the color themes. Every dress has its own story to tell. You can be the storyteller, you can describe your own design. A career in fashion design would give you the maximum possible satisfaction. You can be your own boss and you start your own brand from the 0 point, and you could sky would be the limit that you could achieve, and it would change the way you see the world as the field of full of creativity and fun. The industry will give you a huge margin of almost every product. This career gives you an opportunity to achieve fame of what you are being doing currently. So these are some things that you could work upon. In the next class, we will discuss this more. And I hope you enjoyed it. I hope you got some knowledge about this thing. And if you have any query, you can share the query in the link mentioned. Thank you so much.